Hello, hi, welcome to the new video of the Muscle Teacher. Again, today we are with a new video from class 8 and the chapter is Parliament and the Making of Laws. Okay, जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग NCERT का कोर्स चला रहे थे and this is what we came up with the new chapter. We have come up with a new chapter and today's chapter is this Parliament. It is a very important chapter as you say. Okay. So before moving directly to the chapter, as usual, we always go through a short description, a short brief introduction about the chapter. तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, okay, if we consider parliament, if we talk about parliament is what? Parliament is what? Say me, anyone? Okay, see, parliament, we can say that parliament is the law-making body of the nation. Okay, parliament is the law making body of the nation. It represents the will of the people. It represents the will of the people. Okay, it also plays a very vital role in the democratic system of the country, we also say. And the parliament, if we say the parliament, it consists of the president and the two houses, that is our Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, am I clear to everyone or not? Am I clear or not? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes or no? See, the thing is that the main thing over here is that, see, this parliament, okay, see, it plays a very important, it plays a very vital role in the democratic system, in the governance, in the balanced way of governing the nation. ठीक है? So see, the parliament, okay, if you consider the parliament, okay, the process of this lawmaking, okay, the process of this lawmaking, it doesn't involve any single person. No, it involves a group of people. It involves our elected representatives. So it shows how, in a fair way, in a balanced way, we go for the governance of a country. We go for the governance of a country. Am I clear or not? ठीक है? समझ में आया कि नहीं? ठीक है? And that is why we say that Parliament is not just a governing body, okay, not just a law making body, but also a big pillar of our democratic system. It also a big pillar of our democratic system. Am I clear? समझ में आया कि नहीं? So let's start with the chapter. Okay, just give me a moment. Let me check everything is going on in a good way or not. Just let me write something first. Hi. Welcome. Okay, just let me check the focus and all. Just give me a moment. Okay, done. I hope I need to more focus it. Okay. Just give me a moment. Okay, done. ठीक है, इसके साथ ज़्यादा नहीं लगता है, नहीं तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा फिर से, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आई एम डूइंग इट विथ माई फोन. ओके, सो सी, ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ठीक है, सो वेलकम. लेट्स गो विथ द चैप्टर. सी, दिस इज आवर पार्लियामेंट. ओके, दिस इज आवर पार्लियामेंट. दिस वन इज द प्रीवियस वन and this is the newer one. ठीक है, पहले ये था ऐसे दिख रहा था, अभी ऐसा दिख रहा है. ठीक है, so let's start. ठीक है, now see, very important thing. Okay, the chapter is very important. This is a very important part also. There is a question that starting the chapter starts with the question: why should people decide? Why should people decide? ठीक है, why should people decide? Am I clear or not? Okay, just give me a moment. Let me just, okay, now I think it is visible. It will be visible now. हाँ, okay, मेरे को थोड़ा सा फ्रेम इतना तक चाहिए. ठीक है, फ्रेम थोड़ा इतना तक चाहिए. ठीक. So see, the question is that why should, okay, why should these people decide?
ठीक है, क्यों, सोचो क्यों लोगों को ही डिसाइड करने का ये जो थिंग, व्हाई शुड वी गिव दिस चांस टू द पीपल? सी, वी नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, डेमो मीन्स people, cratic means rule, that means the rule of the people. अब सोचो, क्योंकि हम लोग का कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम फॉलो करता है, पहले बात. एंड सेकेंड इज दैट बिकॉज वी डू फॉलो दिस काइंड ऑफ system where we do elect our representatives, and these representatives will be representing us or in behalf of us in the parliament or in the state legislature. Am I clear or not? समझ में आया कि नहीं? सोचो हम लोगों ने क्या किया, सोचो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, these are the people. okay, we always used to have this, आप लोग सुने होंगे CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, सुने होंगे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स. या फिर आज के टाइम पे आप लोग जिसको हम लोग के टाइम जब हम लोग छोटे हम लोग पढ़ते उसको बोलते थे मॉनिटर, क्लास मॉनिटर. ये सुनो, आज के टाइम तुम लोग ऐसा बोलते हो क्लास प्रीफेक्ट, ठीक है, क्लास प्रीफेक्ट भी बोलते हो आजकल तुम लोग, ठीक है, क्लास प्रीफेक्ट. So these are the representatives because you have chosen or somebody else have chosen. ठीक है, ये क्लासरूम वाला इनडायरेक्ट वे में चूज किया था कि हम लोग का क्लास टीचर, नहीं तो कोई और चूज करता है. बट wherever we vote, we choose. Okay, wherever we choose or we vote, then we call it as a direct elections or we can say that हम लोगों ने चूज करके उसको बिठाया, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है हम लोगों का. Am I clear or not? समझ में आया इतना तक? देखो तब क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग का स्टेट, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, ठीक है. सो सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग जितना जो छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, हम लोग छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस ब्लॉक में सपोज हम लोगों ने वोट देकर किसी एक को जिताया, हम लोगों ने किसी एक को एमएलए बनाया, किसी एक को किसको क्या बनाया, एमएलए बनाया, ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर में जो हम लोग का जो इलेक्शंस होता है उसमें हम लोगों ने किसी एक को वोट देकर जिताया, ठीक है, एंड दैट मेंबर इज द एमएलए. Now see, our vote lead him or her into the seat of this. So that means what? We made him or her the representative. Yes or no? Yes or no? That means the power lies within us. Yes or no? Think of the preamble. थोड़ा पीछे जाओ, preamble को सोचो, क्या बोलता है? The source of power lies with the people of the country. The source of power lies with the people of the country. That is why the preamble in the first line it is said that we the people of this country, we the people of India. Am I clear? We the people of India. Clear हुआ? इधर तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है. देखो वो क्या बोल रहा है कि लोग क्यों डिसाइड करना चाहिए. देखो फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट आवर कंट्री इज ए डाइवर्सिटी. यस और नो? आवर कंट्री इज ए डाइवर्सिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग यहाँ पर हैं. यू नो, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, people belonging to having different traditions, following different traditions, people having different festives, people having different culture. ठीक है, तो बहुत सारे religions के धर्म हो, faith हो, traditions, festives, different culture, okay, different fooding patterns, everything. Okay, they are having different people. So क्योंकि उन लोग बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, ठीक है, and these people obviously because of the different people have some different kind of opinion, different kinds of perception, and people do understand from their kind of perception. समझ में आया कि नहीं? अपने तौर तरीके से वो सोचते हैं, अपने हिसाब से वो सोचेंगे, ठीक है. अब देखो अगर लोगों के पास में चूज करने का जो पावर होगा, डिसाइड करने का उनके पास पावर होगा कि हाँ मैं इसको वोट दूं, इसको वोट ना दूं, ठीक है, ठीक है. मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर एक सीट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं. नाउ हियर सम ऑफ these are the two candidates, ये सब लोग हैं. अगर इनके हाथ में डिसाइडिंग फैक्टर गया कि हाँ इनमें से इसको चूज करके इसको चूज करना है, ऑब्वियसली some people will choose him,
and the person with maximum number of the votes will be winning. ऐसा नो, क्योंकि क्यों कह रहे हैं, उनका हाथ में पावर ही क्यों है? इसलिए पावर है ताकि आगे जाकर किसी भी तरीके का कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी किसी टाइप का कल्चर हो, किसी के ऊपर डोमिनेंस ना बना रखे। लोगों के हाथ में पावर रहेगा तो वो बैलेंस्ड वे में चला जाएगा। अगर किसी एक के हाथ में पावर रहेगा तो बैलेंस्ड वे में नहीं जाएगा वो। ठीक है, शायद मैं किसी रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, मैं उसको ज़्यादा पावर दे दूंगा, शायद उसके लिए कुछ ज़्यादा काम कर लूंगा। नो, अगर लोग मेरे को जिताएंगे, क्योंकि लोगों ने मेरे को वोट किया, तो सारे लोग मेरे को ऊपर भरोसा करते हैं कि ओके आई डू ट्रस्ट दिस पर्सन, सो विल बी गिविंग दिस पर्सन द चांस टू गवर्न अस। अगर कोई एक अगर इंसान है तो मैंने उसके लिए अगर कोई बेनिफिट कर दिया, उसके लिए अगर कुछ मैंने प्रिविलेजेस कर दिया, तो वो मेरे को चूज कर लेगा। am I clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए लोगों के हाथ में पावर है। am I clear? ठीक है, अब देखो, see, India, we know it became independent on 15th August of 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. ठीक है, people were inspired by ideas of freedom, equality and participation in decision making. This is the biggest power, decision making. अगर देश में कुछ हो रहा है तो हम लोग उसमें दिमाग लगाएंगे, हम लोग उसमें भागीदार होंगे। Am I clear? Under the colonial rule, people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took, but they faced grave danger if they tried to critique this decision. ठीक है, पहले से भी जब ब्रिटिश हम लोग के ऊपर राज कर रहा था, we were the colonies of British. Whenever Britishers took some of the steps, some of the decisions, maybe we do not like it, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको हाँ में हाँ मंजूरी देना पड़ता था। अगर हम मंजूरी नहीं देते थे तो इन रिटर्न हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता था। ठीक है, इसलिए लोग कुछ बोल भी नहीं थे। लेकिन द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। लेकिन जब फ्रीडम मिला, ये सिचुएशन का डर का जो माहौल था ये धीरे धीरे हट गया। ठीक है, ये धीरे धीरे हट गया। समझ में आया कि नहीं? नाउ सी, ठीक है, नाउ the nationalists began to openly criticize the British government and make demands. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded there will be elected members of the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. ठीक है, सी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1885 में जब आईएनसी बना, ठीक है, 1885 में जब आईएनसी बना, उसके बाद they demanded for the elected members of the legislature with the right to discuss, ठीक है, the budget एंड आस्क क्वेश्चन। देखो, जैसे कि मैंने बोला था, उन लोग के पास उस टाइम इतना पावर्स नहीं था, तो मेंबर्स दे वर द, सपोज मान लेते हैं, जब उसके थोड़ा पीछे हो जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस टाइम बहुत सारे एक्ट पास किए गए थे। छोटे छोटे एक्ट में छोटे छोटे पावर दिए जा रहे थे सब इंडियन मेंबर्स को। उस टाइम तक इंडियन मेंबर तो पार्ट थे, ठीक है, लेकिन उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह उनको पार्ट दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आया तो वो बोला कि मेरे को ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनके पास ये राइट होना चाहिए डिस्कस करने के लिए बजट को, कि कहाँ पर कितना पैसा जाएगा। सेकंड क्या है, उनको क्वेश्चन भी आस्क, मतलब पूछने के लिए भी उनके पास वो हक देना चाहिए, उनको राइट देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, ठीक है, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन while these legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists and they did not allow for all adults to vote nor could people participate in the decision making. देखो फिर क्या हुआ, जब धीरे धीरे ठीक है, जब धीरे धीरे लोग उनके ऊपर क्या बोलने लगे कि नहीं, आप लोग भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना चाहिए। ठीक है, सी क्या हुआ उस टाइम, मैं बोलता हूँ चीज़ क्या था उस टाइम। जब पहली बार जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि नहीं, वी विल बी हैविंग द इलेक्टेड मेंबर्स, उनको तुमको राइट देना चाहिए, उनको क्वेश्चन पूछने के लिए, बजट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उस टाइम तो उनको थोड़ा सा पावर दिया गया था। धीरे धीरे जब ये नेशनलिस्ट जो ये जो चीज़ था जो लोगों के दिमाग में और ज़्यादा बढ़ने लगा, दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी कि नहीं हम लोग को और अच्छा लगेगा, हम लोग थोड़ा और डेवलप होंगे, ये जब अच्छा धीरे धीरे लगने लगा तो क्या हुआ, पीपल द ब्रिटिशर्स, ओके, वो सोचे कि नहीं अगर इन लोगों को इतना ज़्यादा पावर देने लगे तो एक दिन आगे हम लोग को यहाँ से हटा ही लेंगे। ओके, वी कैन नॉट गिव देम एन अमाउंट ऑफ पावर्स, नो वी कांट गिव देम। ठीक है, वो बोले, देखो वो क्या हुआ, इन रेस्पॉन्स किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट। ठीक है, ब्रिटिश ये देख पा रहा था कि नहीं अभी जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है
जो देशभक्ति है, जो देश प्रेम है, वो बढ़ने लगा है। ब्रिटिश को ये बात पता भी चलने लगा, लेकिन उसके लिए वो क्या बोला कि देखो तुम तो तभी कुछ कर पाओगे जब तुम रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा ज़्यादा बढ़ेगा, तो उतना कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलाउ नहीं किया सबको वोट देने के लिए, ठीक है, वोट देने के लिए उनको अलाउ नहीं किया, पहली बात। एंड सो दैट पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में तुम लोग का कोई भी हक नहीं है। एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ? देखो फिर क्या, देखो क्या हो, as I read chapter 1, the experience of colonial rules as well as the participation of the different people in the struggle freedom left a little doubt in the minds of nationalists that all persons independent in India would be able to participate in decision making. With the coming of the independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean the government could be do what it felt like. It meant the government had to be sensitive to people's needs and demands. The dreams and the actions or aspirations of the freedom struggle were made to concrete the constitution of independent India and laid down the principle of universal adult franchising. देखो क्या बोला कि पहले चैप्टर हम लोग पढ़े थे, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट्स दैट ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस, इन द मेकिंग ऑफ डिसीजंस, ठीक है। क्योंकि जब ब्रिटिश ने हम लोगों को कॉलोनाइज किया था, उस टाइम तक हम लोग के दिमाग में ये सब चीज़ था, ठीक है, कि जब भी हम लोग का इंडिया जब इंडिपेंडेंट बनेगा, व्हेनेवर विल गेट इंडिपेंडेंस, shall we take part, shall the people will take part in this decision making, तो हम लोग को पावर मिलेगा क्या डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया था, ठीक है। और क्या हुआ, विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री. दिस डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड व्हाट इट फील लाइक, द गवर्नमेंट हैड टू बी सच टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स. देखो जब धीरे धीरे इंडिपेंडेंस तक बात आया था, तब तक लोगों के दिमाग में था कि हम लोगों को आगे जाकर डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए वो लोग अलाउ करेंगे कि नहीं, ठीक है, लोगों के दिमाग में आता, क्योंकि वो तो बहुत सालों से जो ब्रिटिश के दबाव में थे ना, कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन डाउट आ रहा था कि आगे जाकर हम लोग को अलाउ करेंगे तो शाल दे अलाउ अस, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इंडिपेंडेंस आ गया, इंडिपेंडेंस हो भी गया, नाउ दे आर द पार्ट ऑफ, दे आर द सिटीजन ऑफ दिस फ्री इंडिपेंडेंस इंडिया. अभी वो सिटीजन हो गए इंडिया के, फ्री इंडिपेंडेंस इंडिया के. एंड नाउ वो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अभी हम लोग इंडिया के सिटीजन से, अभी हम लोग फ्री इंडिया के सिटीजन से. दैट डज नॉट मीन दैट दिस गवर्नमेंट, व्हिच एवर गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो अपने हिसाब से कुछ काम करे, हम लोगों को लिए पूछेगा. नहीं, यू शुड लुक आफ्टर द पीपल सेंसिटिविटी. लोगों के बारे में सोच कर ही उसके को काम करना चाहिए, ठीक है, वैसा बोला. द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एंड लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है. एंड इसीलिए कि ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोग चले, एंड वी शुड गिव दैट फ्रीडम. जो जितने भी जो सपने थे, जितने भी एस्पिरेशन थे फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, तो इसीलिए लोग उसके ऊपर काम कर पाएंगे, लोग उसके लिए अपना हक रख पाएंगे. एंड दैट इज व्हाई इट स्टार्टेड एंड गेव द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ताकि सब लोगों को, जो भी एडल्ट है एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, दे विल बी हैविंग दैट काइंड ऑफ राइट टू वोट फॉर समथिंग विच दे वांट. अपने हिसाब से मैं चाहूंगा सपोज बीजेपी को वोट देने के लिए, आई विल गिव द वोट टू बीजेपी. मैं सपोज आई विल थिंक ऑफ द बीजेडी टू वोट, तो मैं आई विल गिव द वोट फॉर द बीजेडी, ठीक है. दैट मीन्स आई विल गेट दैट टोटल इंडिपेंडेंस, आई विल गेट दैट टोटल राइट दैट whosoever I want to choose, I will be choosing that person as my representatives. Am I clear or not? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके. फिर देखो, अब देखो, नाउ सी पीपल एंड their representatives, ठीक है. अब क्या पढ़ेंगे? पीपल एंड their representatives, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देख लेता हूं थोड़ा सा. हाँ ठीक है. See, the takeoff point for a democracy is the idea of consent. That is the desire, the approval and participation of the people. It is the decision of the people that creates a democratic government and decides about its function. The basic idea of this kind of democracy is that the individual of the citizen is the most important person and the principle of the government as well as other public institutions need to have trust on these citizens. देखो अब क्या है, नाउ विल डिस्कस अबाउट द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स. देखो मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन है एक्स,
यहाँ पर एक पर्सन है वाई, ऐसे 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 करके बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। ओके, these people will be electing someone, this person AB, as their representatives, people and their representatives। समझ में आया कि नहीं? People and their representatives, because these people have chosen this person as their representatives। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? ओके, नाउ सुनो, अब सुनो। The take up main point of the democracy is the idea of consent। ठीक है, द मेन पॉइंट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। आइडिया ऑफ कंसेंट मतलब क्या? द डिजायर द अप्रूवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। देखो, कंसेंट, बिकॉज आई वांटेड समवन, वो मेरा कंसेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो मेरा अपना कंसेंट है। सपोज ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोर्सफुली किसी मेरे को फोर्स करके किसी और को वोट दिलाया जा रहा है। This was not my consent. On the influence of money, this was not my consent। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, and that is what is the main point of this democracy, consent। The idea of consent is the main point, take off point of this democracy। Clear हुआ? Second क्या बोल रहा है ये? कि it is the decision of the people that creates a democratic government। ठीक है, ये लोगों का डिसीजन ही है जो कि एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करवाता है एंड डिसाइड्स अबाउट द फंक्शन, एंड वो कैसे काम करेगा उसके बारे में सोचता है। ठीक है, ऑब्वियसली द पीपल वी चूज, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वी चूज आर द ones who will help us in framing this democratic form of government, who will help us in running this or functioning this democratic form of government। जिस तरीके से हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उस हिसाब से हम लोग का कंट्री ग्रो करेगा, हम लोग का कंट्री गवर्न होगा, हम लोग का कंट्री चलेगा। ओके, एंड इट लाइज विद whom? with the people। ऑब्वियसली अगर हम सोचो, अगर हम वी विल चूज वेरी गुड कैंडिडेट्स, देन ऑब्वियसली वी विल बी रीचिंग टू न्यू हाइट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आवर कंट्री विल, आवर नेशन विल रीच एट सर्टेन हाइट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? बिकॉज दे विल बी हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज, दे विल हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज, अब बी इट एनीथिंग। ठीक है, लोगों के हाथ में पावर ही है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये देखो, the basic idea in this kind of democracy is that individual or the citizen is the most important person। obviously एक चाहे एक इंडिविजुअल हो या फिर पूरा का पूरा देश का सिटीजन हो, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ऑब्वियसली बिकॉज एक वोट का पावर बहुत ही है। मी एज अ पर्सन आई एम वोटिंग समवन, अदर पर्सन इज पर्सन दे विल वोटिंग समवन एल्स। ठीक है, और क्या बोला है? एंड द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन दिस रीजंस। एंड देखो, एंड जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक अफेयर्स है, ये लोगों के ऊपर आपको भरोसा करना ही होगा, बिकॉज दे हैव चूजन देम, बिकॉज दे हैव चूजन देम, दीज पीपल हैव चूजन देम। आम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, see how does this individual give approval to the government? Okay, how does this individual give approval to the government? One way of doing so, as you read, through elections। okay, one way is through elections। people would have elected representatives in the parliament, then one group from the among the elected representatives from the government, the parliament is made up of all representatives together, controls and guides the government। in this sense people through their chosen representatives from the government also control it। देखो, वो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे जाएगा कि हाँ यही करना ही करना है। सी, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली हेल्पिंग देम, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। क्या बोल रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्शंस, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्शंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्शंस वी आर चूजिंग, suppose we go for the general election in the parliament, so okay, we have chosen our MPs, we have given our vote for these MPs, from these MPs someone will be selected as what? Our prime minister, yes or no? In the we go for the state legislature, we go for the state legislature elections। okay, in the state legislature elections we have chosen our MLAs, we have chosen our MLAs, and from these MLAs one MLA will be chosen as what? our chief minister of that particular state। am I clear or not? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ठीक है, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, वही बोल रहा है इन द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। ऑब्वियसली अगर हम पार्लियामेंट को देखेंगे, ठीक है, यहां पर मैं बताता हूं, अगर हम पार्लियामेंट को देखेंगे, ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट को देखेंगे
तो पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज व्हाट, वन इज प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, टू हाउसेस दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ दिस टू थिंग्स, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। वो क्या बोले, अगर हम पार्लियामेंट को देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट को, ठीक है, यहां पर जब लोकसभा इलेक्शन होता है वी चूज आवर एमपीज इन दिस पार्लियामेंट इलेक्शंस फ्रॉम दिस लोकसभा, ठीक है। ये क्या है, लोकसभा है, ये क्या है, लोकसभा है। लोकसभा में हम लोग एमपी चूज कर रखे एंड फ्रॉम दीज एमपीज वन विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर, वन विल बी आवर व्हाट, प्राइम मिनिस्टर। हम लोग चूज कर लिया प्राइम मिनिस्टर को, वही बोल रहा है। एंड दीज रिप्रेजेंट टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। ये जो एमपीज हैं एंड ये जो इंसान है, ये दे ऑल गेट टुगेदर एंड कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर वी क्लियर और नॉट, आर वी क्लियर और नॉट? ठीक है, सपोज मान लेते हैं यहाँ से 545 एमपीज हैं, ठीक है, और ये कितने हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में आई गेस 245 है, यहाँ पर 545 प्लस 5 मेंबर्स आसपास आते हैं, या 2 मेंबर्स आसपास, यहाँ पर 245 के आसपास मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये जो लोकसभा है, ठीक है, इफ यू लुक आफ्टर द लोकसभा, ओके, इफ यू टॉक अबाउट दिस लोकसभा, if we talk about this Lok Sabha, we know in this Lok Sabha, suppose we are having 545 members in total, ठीक है, these are elected by us, okay, समझ में आया कि नहीं? They are having a 5 years term, they are having a 5 years term, in every 5 years we'll have again one elections and again one form of government will be formed. Am I clear? इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब क्या है, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, अब क्या है, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, see, it is created after 1947. The Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have the principles of democracy. में जैसे मैंने बोला था क्लास स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या बोला था, द पार्लियामेंट, ओके, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, ओके, इट शोज द विल ऑफ द पीपल, इट शोज द विल एंड फेथ ऑफ द पीपल, दैट इज व्हाट इट इज रिटन ओवर देयर, इट शोज द विल एंड फेथ ऑफ द, लोगों का जो भरोसा था, लोगों की जो इच्छा थी, दैट इज व्हाई दिस पार्लियामेंट हैज बीन फ्रेम्ड, बिकॉज इसी से ही हम लोग का जो लॉ बनेगा, यही हम लोग का लॉ फ्रेम करवाएंगे एंड उसी से हम लोग का कंट्री चलेगा। Am I clear? इतना तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दिस इज द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल, ठीक है। जैसे मैंने बोला पार्लियामेंट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली जितने भी लोग वहां पर पार्लियामेंट में बैठे हैं दे आर चोजन बाय द पीपल, ओके। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज देयर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो इलेक्शंस हैं हम लोग का जनरल इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन जो भी है वो नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन उसमें होता है, ठीक है। हम लोग का जो एमएलए इलेक्शन होता है उसी तरीके से भी होता है। तो लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड इन वंस इन एवरी 5 years, जैसे मैंने बोला, ठीक है। लुक आफ्टर हियर पार्लियामेंट, ठीक है, एक साइड में छोड़ दो प्रेसिडेंट को, ठीक है, और यहां पर हम लोग का आ गया दो चीज, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है वो एवरी 5 साल में हर बार टूटेगा, 5 साल में टूटेगा, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा, ये फिर गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, फिर वो 5 साल तक फिर से टूट जाएगा, ठीक है। The country is divided into numerous constituencies as shown in the map, and each of the constitutions dictates 1% to the parliament. These countries usually belong to the different political parties, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे रीजियंस में, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटे हैं पूरा कंट्री, पूरा ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, एक पर्सन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक पर्सन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड the candidates who contest elections are usually belong to different political parties and they do belong to different political parties, जो कि एक मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के,
ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज, ठीक है, जो है एक थोड़ा एग्जांपल दिया गया इलेक्शंस का, ठीक है, उस हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं। See, if we see the parliament, okay, if we see the parliament, they are having different functions that this parliament goes for. ठीक है, they are having different functions that this parliament goes for. And what are those functions? See, first we'll discuss the functions one by one. First is what? To select the national government. ठीक है, to select the national government. Just let me write. See, to select the national government. ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, हाँ, यहाँ पर थोड़ा जगह है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट का। ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट। सॉरी, आई एम सॉरी। सुनो, नाउ पहला पॉइंट वो क्या बोला? पहला पॉइंट वो क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट, टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट सबको दिख गया? ठीक, इसको मिटाता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे। नाउ सी, नाउ कंसिडर दिस पार्लियामेंट। हम अभी लोकसभा का बात करते हैं। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शंस का बात करते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट लोकसभा इलेक्शन और तो लोकसभा। ठीक है, नाउ सी, इफ वी कंसिडर दिस लोकसभा, ठीक है, इफ वी कंसिडर दिस लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में मान हम लोग का नॉर्मली अगर लोकसभा का बात करें, ठीक है, सो 545 सीट्स तो हैं आसपास। ठीक है, 545 टू 545 प्लस 550 आसपास की सीट, 545 सीट मांगते हैं हम लोग। ठीक है, सो दीज 545 सीट्स, ठीक, हम लोग बोले ना हाउ टू फॉर्म दिस, हाउ टू सिलेक्ट दिस नेशनल गवर्नमेंट। तो देखो ये जो 545 मेंबर्स जो हैं, दीज 545 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, जो कि पूरे भारत में है, पूरे इंडिया में है। फ्रॉम ईच ऑफ द रीजन्स आर डिवाइडेड, बोलते हैं छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट, छोटे रीजन्स में बट गए हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूट दे आर हैविंग 1 मेंबर्स, उस जिसको हम लोग जिताते हैं एंड पार्लियामेंट हम लोग भेजते हैं। सो पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स गए हैं। ठीक है, सोचो फ्रॉम दीज 545 ऑल टोटल मेंबर्स, जिस भी पार्टी का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका 272 और 273 प्लस सीट्स होंगे, ठीक है, जिस भी पार्टी का, द पार्टी हु इज हैविंग मोर देन 272 और 273 सीट्स, दैट पार्टी विल बी द विनिंग पार्टी। इतना तक समझ में आ गया? मान लेते हैं कोई पार्टी यहां पर एक्स है, एक्स वाई है, ये कोई पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम, पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम कोई एक्स वाई है, एंड दिस पॉलिटिकल पार्टी, उसने क्या किया, 272 सीट्स जीत लिया, 272 प्लस सीट जीत लिया है एंड उसने इलेक्शन जीत लिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कि क्या है कि अगर कोई भी लोकसभा सीट्स में 272 सीट्स के ऊपर जीतता है तो वो अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगा कि उसके पास मेजॉरिटी है, उसके पास क्या है, इसका मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड मेजॉरिटी, बहुमत, बहुमत। ठीक है, जिसके पास है मेजॉरिटी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेजॉरिटी, okay, this XY party, this XY party have won elections। समझ में आया कि नहीं? इतना तक समझ में आ गया? और एक चीज यहां पर भी है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखो, ये कोalition गवर्नमेंट क्या है, मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको मेजॉरिटी नहीं हो पा रहा है, जिसका मेजॉरिटी नहीं हो पा रहा है। सो दीज पार्टी, सपोज 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, दे विल, ठीक है, कम टुगेदर, दे विल कम
टुगेदर, ठीक है। एंड वो मिल जाने के बाद उनको 272 सीट प्लस आ जा रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। when two or more than two political parties okay come together in order to form a majority, the government form over there is called as the coalition form of government. am I clear? इतना तक समझ में आ गया? दो से ज्यादा जब पॉलिटिकल पार्टीज दे कम टुगेदर, एक साथ मिल जाते हैं एक गवर्नमेंट फॉर्म करवाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि हम अगर हम इंडिया का बात करें, ठीक है, जैसे हम इंडिया का बात करें तो वी नो दिस, यू नो, NDA अलायंस है, ठीक है, इंडी, ठीक है, ये अलायंस है, ठीक है, इंडिया अलायंस है, समझ में आया कि नहीं? सो दीज आर द अलायंसेस, ठीक है, मिलकर एक कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो करते हैं। am I क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक हुआ? ओके, ठीक हुआ तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये पहला पॉइंट गया हम लोगों का, ठीक है। ये क्या हुआ? ये पहला पॉइंट हम लोग का गया कि क्या, जो कि टू फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट को जाते हैं, ठीक है। अरे हाँ, और यहां पर भी एक चीज है, इसको भी तुम थोड़ा सा देख लो, ठीक है। जो ये लोकसभा के बारे में था पार्लियामेंट का, ये राज्यसभा के बारे में नॉर्मली सी दिस राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जो हम लोग का अगर जो पार्लियामेंट का बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट पार्लियामेंट, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू लोकसभा, LS एंड राज्यसभा, ठीक है। इट इज द लोअर हाउस, इट इज द अपर हाउस, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इट इज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट्स के लिए है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा इज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। देखो यहीं पर लिखा गया है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देखो इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है, राज्यों के लिए मतलब स्टेट्स के लिए है, ठीक है। तो राज्यसभा ऑल्सो इनिशिएट द लेजिस्लेटिव बिल रिक्वायर्ड द पास ऑफ राज्यसभा in order to build a law, therefore important role of viewing altering the laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of the various states. There are 233 members plus 12 members nominated by the president, ठीक है। नियरली 245 मेंबर्स के आसपास हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये जो राज्यसभा के जो मेंबर्स है, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है, ठीक है। जितने भी हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दीज मेंबर्स विल बी इलेक्टिंग दीज राज्यसभा मेंबर्स। समझ में आया कि नहीं? जो राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? जो दूसरे के जो अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, दे विल बी इलेक्टिंग दीज मेंबर्स, ठीक है। एंड याद रखना, राज्यसभा का कोई प्रॉपर टेन्योर नहीं है, फिर भी हम लोग उसको 6 साल का टेन्योर मानकर चलते हैं, ठीक है। राज्यसभा डू नॉट हैव ए प्रॉपर टेन्योर, टेन्योर मतलब उसका जो टर्म है, जैसे कि लोकसभा का 5 साल है, राज्यसभा का 5 साल नहीं है, नॉर्मली हम मानकर चलते हैं उसका 6 साल का है, और एवरी 2 ईयर्स में 1/3 ऑफ द मेंबर्स वो रिटायर होते हैं फिर ज्वाइन होते हैं, ठीक है। एवरी 2 ईयर्स में 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर होते हैं फिर दूसरे ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, हर 2 साल में, ठीक है। लेकिन नॉर्मली उसका टेन्योर 6 साल तक उसको माना जाता है, लेकिन टेन्योर उसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। राज्यसभा RS डू नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। राज्यसभा डू नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर। एम आई क्लियर? इतना तक समझ में आएगा सब लोगों को, ठीक है, ओके। फिर देखो, फिर क्या है? फिर जो आया हम लोग का कि तो कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का चला गया टू फॉर्म द, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल पार्टी, नेशनल गवर्नमेंट। अभी क्या है? टू कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। देखो क्या बोल रहा है? द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन begins with the question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is a very important way through which Parliament controls the executive by asking questions to the government's alleged shortcomings, and also comes to know about the opinion of the people through the representatives in the Parliament. That is, the MPs asking questions to the government is a crucial task for every MP. देखो क्या बोल रहा है कि जब पार्लियामेंट अपना सेशन बिगिन करता है, जब पार्लियामेंट अपना सेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द पार्लियामेंट स्टार्ट्स न्यू सेशन, जब नया सेशन स्टार्ट करता है ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो क्या होता है
एक क्वेश्चन आवर बोलकर एक सेशन होता है जिसमें वहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। उसके बारे में वहाँ पर क्वेश्चन पूछ के कैसा क्या चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या चीज़ आपने किया है, क्या चीज़ आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। सो दिस क्वेश्चन द पीपल कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, द वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली इसमें हम लोग के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट उसको कंट्रोल कर सकता है। वी नो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, वी नो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। किसमें? हम लोग का एक लेजिस्लेटिव है, हम लोग का एक एग्जीक्यूटिव है, हम लोग का एक जुडिशियरी है। ये जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का ये एक मेन तरीका क्या है? क्या है? क्वेश्चंस। क्या है? क्वेश्चंस, ठीक है। टू आस्क क्वेश्चन इज द मेन वे, इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव ही वो लोग हैं जो कि इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो उनको हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, आपने इंप्लीमेंट किया कि नहीं, अगर इंप्लीमेंटेशन हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या हुआ, वी कैन आस्क क्वेश्चन एंड दैट इज वाउ दे कीप ऑन दे कीप ऑन ट्रेसिंग देम, ठीक है। समझ में इतना तक? देखो, द अपोजिशन पार्टी plays a very critical role in the healthy function of the democracy. These highlight the drawbacks of various policies and programs of the government and mobilize the popular support of the all these policies. देखो, ये ऑपोजिशन के बारे में एक चीज मैं बताता हूँ, ऑपोजिशन के बारे में, ठीक है। नाउ लिसन, सी, ठीक है। सी, इफ यू कंसिडर आवर कंट्री, अगर हम लोग अपने कंट्री को देखेंगे, देखो ये जो वर्ड नहीं है ऑपोजिशन, ये बहुत एक पावरफुल टर्म है, ये बहुत एक पावरफुल टर्म है, इज वेरी पावरफुल टर्म। am I clear or not? But the opposition party of a country, they do not understand actually, ये समझ नहीं पाते कि इसका पावर क्या, समझ नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया हुआ है इन लोगों को, या फिर जो भी चीज़ें हैं ये लोग कर रहे हैं, आई ऑलवेज फील दैट कि दे कम इन अ वे कि क्योंकि हम लोग ऑपोजिशन में हैं, हम लोग सब चीज़ों को अपोज करेंगे। ये डिफरेंस है, ठीक है। बीइंग अ वेरी गुड अपोजिशन एंड बीइंग वेरी द वे कि जस्ट हम लोग इलेक्शन जीते नहीं मतलब हम लोग सब में रुकावट डालेंगे। नो, योर वर्क इज टू क्वेश्चन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट। योर वर्क इज नॉट टू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग। नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं ऑपोजिशन में हूं, मैं इलेक्शन हार गया, मेरा काम यह है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है तो वहां पर मैं क्वेश्चन करूंगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा करे तो तब भी उसमें भी मैं क्वेश्चन करूंगा। नो, दिस इज नॉट योर वर्क। बट दुख की बात यह है कि लोग यही कर रहे हैं, हम लोग का ऑपोजिशन यही करता है कि क्या कुछ भी अगर अच्छा भी चीज होगा उसमें भी हम लोग अपोज करेंगे, बुरा भी चीज होगा तब भी उसमें भी अपोज करेंगे। नहीं, ऑपोजिशन वर्क इज वेरी 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 क्रुशियल फॉर दिस। दे शुड अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन का बहुत एक बड़ा सा पार्ट है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ऐसा नहीं कि हम लोग ऑपोजिशन तो सब कुछ को क्वेश्चन, नहीं, वी डू नॉट क्वेश्चन एवरीथिंग इन ऑपोजिशन। नो, ये बात इन लोग को समझ में आना चाहिए। ऑपोजिशन डज नॉट मीन दैट वी विल अपोज एवरीथिंग। अपोज द थिंग व्हिच इज एक्चुअली बैड फॉर द नेशन, एक्चुअली नॉट गुड फॉर द नेशन, इट विल हार्म द नेशन, उसमें अपोज करना चाहिए। हम लोग का गवर्नमेंट दे विल अपोज एवरीथिंग, ओके, ठीक है। सुनो, देन सुनो, see, the government gets valuable feedbacks and it is on the toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all the matters dealing with the finances, parliament approval crucial for the government. This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government. देखो, कोई भी अगर चीज़ हो रहा है, कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं, they have to take the permission, they have to discuss everything with the parliament, then only everything will be done, ठीक है। जितने भी हम लोग के जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्रीज है, दे आर द पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव्स, दे आर द पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव्स एंड दे शुड बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय अदर मेंबर्स, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। एंड दिस इज हाउ वी कीप ए कंट्रोल एंड गाइड एंड कैन गाइड देम। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन पूछते उनको गाइड भी कर सकते हैं कि यू शुड बी डूइंग इट। एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज हाउ यू शुड टेक ए कंट्रोल ऑन दैट, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं। देखो,
ठीक है. Now see, now we'll discuss what one of the very important, you can say that term of this chapter, ki how these laws are framed. Okay, how do new laws are framed. ठीक है, समझ में आया कि नहीं. देखो ओके, देखो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी नीचे. लो डिस्कस करते हैं. ठीक है, ठीक है. देखो तो लॉ कैसे बनेगा. ठीक है, देखो यहाँ पर कहाँ पर थोड़ा जगह होना चाहिए. हाँ, यहाँ पर करते हैं. ठीक है, सुनो. तो लॉ कैसे बनेगा, हाउ डू लॉज आर फॉर्म्ड और लॉज आर फ्रेम्ड. ठीक है, लॉज. ठीक है, देखो सी व्हाट हैपन. अब क्या होगा, मान लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि क्या हो रहा है कि कहीं पर कोई डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, मे बी पब्लिक रीडिंग, पब्लिक ओपिनियन, या फिर कोई कुछ बोल रहा है, किस चीज़ से उन लोगों को कोई इन्फ्लुएंस हुए हैं, वहाँ से कोई आइडिया वहाँ से निकल कर. क्योंकि पहले को हम लोग को लॉ बनाए एक आइडिया तो होना चाहिए. फर्स्ट वी नीड टू हैव व्हाट आइडिया. फर्स्ट वी नीड टू हैव व्हाट आइडिया. ठीक है, आइडिया हम लोग को मिल गया कि कोई चीज़ हम लोग किसके ऊपर हम लॉ बनाना चाहते हैं. तो उसको तो कोई ड्राफ्ट तो करेंगे, तो लिखेंगे, रफ में लिखेंगे, रफ. ठीक है, ड्राफ्ट. ठीक है, ड्राफ्ट और बिल. दिस बिल विल बी प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द हाउसेस. अगर वो मनी बिल नहीं होगा तो कोई भी हाउसेस में उसको प्रेजेंट कर सकते, एक्सेप्ट मनी बिल. ठीक है, मनी बिल. तो कोई भी अगर मान लेते हैं कोई लोकसभा में, एलएस में हम लोग क्या करते हैं. ठीक है, लोकसभा में हम उसको प्रेजेंट किए. ठीक है, फॉर डिस्कशन, फॉर द फर्स्ट रीडिंग, फॉर द फर्स्ट रीडिंग. थोड़ा सा कोई भी एक हाउस में. ठीक है, लोअर हाउस में हम उसको रिप्रेजेंट किए, उसी बिल को वहाँ पर लेकर रिप्रेजेंट किए. ठीक है, वहाँ पर रीडिंग हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुआ, फिर सेकंड रीडिंग होगा. ठीक है, जब सेकंड रीडिंग होगा तो सेकंड रीडिंग के बाद फर्स्ट रीडिंग. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग हो जाएगा हम लोग के लोअर हाउस में या फिर अपर हाउस हो जाएगा. होने के बाद वहाँ पर वोटिंग होगा. फिर क्या होगा, वोटिंग होगा. फिर क्या होगा, वोटिंग उस बिल को. तब तक वो लॉ नहीं बना है, तब तक वो बिल ही है, लॉ नहीं बना है तब तक. ठीक है, तो उस वोटिंग होगा. वोटिंग होने के बाद प्रेसिडेंट का असेंट आएगा, प्रेसिडेंट्स असेंट. उसके बाद वो लॉ बनेगा. अगर इनमें से कोई लोकसभा हुआ या फिर राज्यसभा हुआ, कहीं पर भी अगर उनका रुक गया कि नहीं मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस चलता है. ठीक है, am I clear or not? इस तरीके से लॉ बनता है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं. क्या होता है, कोई आइडिया हम लोग सोचते हैं, उसका अगर रफ में कुछ लिखते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं. ड्राफ्ट बनाने को वो जो बिल को लेकर हम प्रेजेंट करते हैं कोई भी हाउसेस में, बी इट लोकसभा राज्यसभा का हाउस में प्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट रीडिंग होगा, सेकंड रीडिंग होगा, उसके बाद वोटिंग होगा. फिर वहाँ पर दोनों हाउस में से चला क्लियर हो जाएगा. फिर जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट जब असेंट देंगे हाँ ये लॉ बन सकता है, तब वो लॉ बनेगा. am I clear? ठीक है, समझ में आया कि नहीं. ओके, ठीक है. अब देखो फिर एक टर्म आया क्या कि अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज. ठीक है,
unpopular and controversial laws. देखो, let us look at some of the situation where the parliament passes laws and that turn to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid but hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to the people because they feel that the intention behind is unfair and harmful. Hence, people might criticize this law and hold public meetings, write about it in newspaper reports, TV channels, etc. In democracy, like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel wrong law has been passed, then the pressure is on the parliament to change this. देखो क्या होता है, कभी कभार इन सपोज फॉर एन एग्जांपल बहुत सारे लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट पास करवा देता है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास मेजोरिटी होता है तो दे कैन पास एनी काइंड ऑफ लॉज, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। अब सोचो हम लोगों ने एक लॉ बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लीगली भी करेक्ट है, लेकिन हम लोग जैसा उसका प्रेजेंटेशन चाहते थे उस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, उसका इफेक्ट उस तरीके से नहीं आया, उसका थोड़ा गलत इफेक्ट आ गया लोगों के ऊपर, ठीक है। जब उसका इफेक्ट ही गलत हो गया लोगों को, तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, सो पीपल स्टार्ट टू क्वेश्चन इट, पीपल स्टार्ट टू क्रिटिसाइज इट, ठीक है, लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दैट इज वाई दिस दे विल फेस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड वो मजबूर हो जाते हैं उसके ऊपर फिर से उस लॉ को देखने के लिए, फिर उस लॉ को चेंज करने के लिए, फिर उस लॉ को स्क्रैप करने के लिए, ऐसे उसका सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, see, various municipal laws on the use of space within municipalities limit the work of law making and street vending illegal. No one will dispute the necessity for the rules to keep the public space open that will open can walk for payments easily. However, one also can deny that hawkers and the vendors provide essential services cheaply and efficiently to millions of living in the large city. This is their means of livelihood. Hence, the law in favor of one group disregards the other will be controversial leading to conflict. देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि सोचो जो रास्ते के साइड में जो बेचते हैं, जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, फ्रूट्स वगैरह रास्ते के साइड में जो बेचते हैं, ठीक है, वेंडर्स जो है, वेंडिंग मशीन जो है, ठीक है, जो वेंडिंग करते हैं ना वहाँ पर, ठीक है, तो सोचो वो क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर ऑब्वियसली स्ट्रीट में आप लोग ऐसे रास्ते के ऊपर ऐसे बेचना तो पूरा ही इलीगल है, तो सही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो सही है, ठीक नहीं, आप लोग नहीं बेच सकते, तो हम लोग बोलेंगे लॉ के हिसाब से तुम लोग ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लॉ बना दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, अगर जो भी रहेगा फाइन लगेगा, फिर उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा। तो सोचो मैंने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो करेक्ट है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कंक्लूजन है वो क्या है कि वो जो लोग जो वहाँ पर काम करते थे उसके लिए जो छोटे छोटे जो इंसान, जो गरीब इंसान है, जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल, दे वर गेटिंग हेल्प बिकॉज ऑफ दोज, एंड जो बेच भी रहे थे उनका भी वो लाइवलीहुड था, हम लोग उसको बंद करवा दिया, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये सुनो, किसी एक का भला करने, कोई एक चीज़ को अच्छा करने के लिए रास्ता अच्छा रहा, वो पेमेंट है, वो लोग वहाँ चलेंगे क्योंकि नेशनल हाईवे वहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, उस एक चीज़ को सही करने के लिए यहाँ पर मैंने जो लोग वहाँ पर खाते थे, लोग वहाँ पर कुछ नौकरी भी कर पाते थे, जो वहाँ से लाइवलीहुड भी आता था लोगों का, अपना जीवन यापन करने का जो पैसा वैसा आता था वो भी चला गया, तो ऑब्वियसली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। am I clear or not? समझ में आ गया? ठीक है, ओके, देन ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ठीक है, वी नीड टू रिमेंबर दैट रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, रादर इन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट वर्क इज डन बाय द एमपीज एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड। देखो वो क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि बस हम लोग इलेक्ट कर लेंगे हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स को और उसके बाद हम लोग का काम खत्म, नहीं, वैसा नहीं कि बस इलेक्शन ही हम लोग का काम उतना तक है, नहीं, हम लोग उसके बाद हम लोग को कंटिन्यूस न्यूज़पेपर देखना चाहिए, कंटिन्यूस हम लोग के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि कितना लोग, इतने एमपीज हम लोग ने सिलेक्ट किए, उतना वो काम कर रहे हैं कि नहीं। सो वी शुड टेक अ स्टेप व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वी एज अ सिटीजन डू नॉट एंड आवर वर्क with only electing our representatives. We should give our continuous efforts, okay, until and unless we see our MPs or our MLAs are doing work for our country or not, our nation or our place or not, ठीक है। We should question them, we should go against them, we should take steps, we should take actions whenever it is required. Am I clear? Clear हुआ? सो इतना तक ये चैप्टर था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा, ठीक है। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर रिगार्डिंग एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ फिर से एक नए क्लास में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।